Today we will start third unit. In previous chapter, we were discuss about constructors, multiple types of constructors, distractors, and friend function, friend classes. All these topic we already discussed in second unit. Today we will start in third unit with inheritance. First we discuss about the inheritance, what is inheritance and what is the properties of inheritance, what is the advantages of inheritance, what is base classes, what is derived classes. All these terminologies we will discuss in today's session. Then we will discuss uh, about some types of inheritance. These are single, multiple, multi-level, hierarchical, and hybrid. We try to cover all these topics in today's session. So we will start now. First of all, the content of this session will be base class and derived class. We have to know about base classes and derived classes because of the concept base classes and derived classes is mainly derived by the inheritance. We have to know about base classes and we have to know about derived classes. What is the properties of base classes and what is the properties of derived classes? So all these things we have to discuss in today's session. After that, forms of inheritance. There are some forms we already discussed whenever we were discuss about OOPS features in starting lectures. There will be some forms: single inheritance, multiple, hierarchical, multi-level, hybrid, or sometimes multi-path inheritance also. So all these type of inheritance we will discuss one by one in today's lecture. So first we will discuss about the base classes and derived classes. It is the important concept because of all inheritance mainly dependent on the base classes and derived classes. So there will be the category of classes. We will use multiple classes in a single program. अभी तक हमने multiple classes use नहीं किए. Only हमने friend function में multiple classes को use किया था, but वहाँ पे भी हमने एक class की property दूसरी class में access friend function से की थी. So that will be different. Using inheritance, we will use the different classes, or we can say multiple classes in a single program. So from now, from this topic, we will use multiple classes in a single program. Okay, we can just get an example like I take a class. Okay. And class is safe. Okay, SHAPE. Okay, then you can take input all these required things. These are required for calculation areas, parameters, circumstances, and all these things. Okay, then you can make some different classes like class. So by using inheritance, we require to access these features in this particular class. Okay, it will be the base class जिसके हम फीचर्स एक्सेस करते हैं, that will be base class. ध्यान रखना. और जो किसी दूसरी क्लास के फीचर्स को एक्सेस करता है, that will be derived class. ओके, यहाँ पे सर्किल के द्वारा सेफ के फीचर्स को यूज किया जा रहा है. सो दैट्स व्हाई द बेस क्लास इज सेफ एंड द derived क्लास इज सर्किल. Okay, so there will some
statements are defined. In support of C++, there will be some points describe about classes, or we can say inheritance properties. तो mainly हम inheritance क्यों use करते हैं? What is the use of inheritance? Because of we can reuse some features, or we can say several things of one class in another class. That will be the important requirement of using inheritance. हम इसीलिए inheritance को use करते हैं ताकि हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग फीचर्स को हम एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकें. That will be the I can say the main requirement of inheritance. Okay. And then if we talk about next property, then we can say there will be drive properties. Drive properties means you can understand by using this word drive. It means something drives some another thing. One class drive another class. It means one class totally dependent on another class. अगर वो क्लास उसको ड्राइव नहीं करेगी, then it will be not give us a efficient results. So it will be totally dependency. We can say in between base class and drive class. So drive property means we can say the dependency on the base class for any class. Okay. That is just a parent-child relationship. है ना. बच्चा जब तक हम कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी साल संभाल हम करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, है ना. जब तक वही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुझे क्या करना है, तुझे कहाँ जाना है, तुझे कहाँ नहीं जाना है, ऑल दीज थिंग्स केयर बाय द पेरेंट्स, है ना. तो सेम थिंग यहाँ पे है. कैरेक्टर क्लास को कौन ड्राइव करेगा? बेस क्लास ड्राइव करेगा. बेस क्लास इज द पेरेंट क्लास and drive class is the child class. So base class is care about the derived class. So we can call them subclasses also. हम derived class को subclasses भी बोल सकते हैं, हम उनको derived classes भी बोल सकते हैं, हम इनको child classes भी बोल सकते हैं. These are all names for the derived classes. Okay. Or if we talk about base class, then we can call them superclass also, base class also, and parent class also. So all these three names you can use for base classes: superclass, base class, or parent class. If we talk about format, then the syntax of derived class is like this. This is the syntax. यहाँ पे हमें syntax क्या कह रहा है देखो. हम कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले. Sorry. Here the name of class will be derived class name. This is the name of class. Here we will use a colon and visibility mode. Visibility mode is one of all access specifiers: public, private and protected. ठीक है. पब्लिक और ये आपका प्राइवेट आ गया और थर्ड आ जाएगा आपका प्रोटेक्टेड. ठीक है. इन तीनों में से किसी एक वर्ड को यहाँ पे यूज किया जाएगा. और यहाँ पे यूज करने का मेनली जो रीजन है वो क्या है?
देखो यहाँ पे हम इन तीनों में से एक वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद उस बेस क्लास का नाम लिखेंगे। ओके, अगर यहाँ पे हम पब्लिक लिखते हैं, then we can say that all features of this base class will be public for this derived class. Okay, and अगर हम protected लिखते हैं, then all features of this base class are protected for this derived class, and it will be also defined as private. All these three words we can use. तीनों की मेनली रेंज क्या होगी, क्या अलाउ करेंगे क्या नहीं अलाउ करेंगे, ये सब हम आगे एक टेबल से समझेंगे, है ना। मैंने एक टेबल इंक्लूड किया जिसमें आप कंप्लीट इनका जो मेनली रेफरेंस है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन कितना एक्सेस कर सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स. So there will be the syntax is the main. So अगर आपकी क्लास सर्किल, आपकी अगर ड्राइव्ड क्लास है क्लास शेप की, तो आप उसके लिए कैसे लिखोगे? क्लास, क्लास कीवर्ड आपको यूज करना, सर्किल, ओके, पहले ड्राइव्ड क्लास का नेम, देन कॉलोन, ओके, ये कॉलोन आपको यहाँ यूज करने हैं। देन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे। मान लो मैं यहाँ पे पब्लिक यूज कर रहा हूँ फिलहाल, ओके, पब्लिक, ठीक है। बेस क्लास के नेम के साथ आपको क्लास कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू राइट डायरेक्टली शेप, ओके। इट विल बी द सिंटेक्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। अब यहाँ पे ये सर्किल जो है वो ड्राइव्ड क्लास बन गई है। अब इसकी बॉडी में हमें जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं। दैट विल बी द सिंटेक्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। All things are specified here in form of statements, like why we use the colon. Colon specifies that the derived class is derived class from the base class. ये colon यहाँ पे ये specify कर रहा है कि ये class किसके द्वारा derive की जा रही है, इस base class के द्वारा. It means ये shape base class है जो colon के बाद आएगी और जो colon के पहले आएगी वो derived class है. It is just separate both of them, derived class and base class, or it provide the we can say scope of base class to derived class. Okay, then next one is the visibility mode. So visibility mode की मैं पहले आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ. These are nothing but access specifiers. Okay, these are access specifiers. We have to use one of them, public, private and protected, according to our requirement. Okay, so we can use either private, public or protected, one of them. By default, visibility mode is private. It is also important point, है ना। बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन भी क्लास में क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ बाय डिफॉल्ट आपके प्लीज म्यूट योर माइक, ओके ओके। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बेस क्लास के फीचर्स होंगे वो प्राइवेट माने जाएंगे। Okay, there will be some examples in form of private visibility mode and public visibility mode. What is the difference here? Okay, so in first example, there will be some data members in scope of private and member functions are in scope of public.
and base class name is student and आपके जो ड्राइव्ड क्लास है उसका नेम है मार्क्स। यहाँ पे हमने स्टूडेंट को एक्सेस किया है प्राइवेट मोड में, ओके, इनहेरिटेड प्राइवेटली। So what is the effect whenever we call someone as privately? Okay, you can read this statement carefully. You will understand the concept. Read fast. Okay, I think आप लोगों ने read कर लिया होगा। देखो, जब कभी भी आप किसी बेस क्लास को प्राइवेट कीवर्ड के साथ एक्सेस करते हो तो यहां से एक्सेस की जाने वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी जब ड्राइव्ड क्लास में आएगी तो वो प्राइवेट बन जाएगी। ओके, इट मींस जो भी आप एक्सेस कर रहे हो बेस क्लास से उसको आपकी क्लास से फिर ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप प्राइवेटली एक्सेस करते हो देन ऑल एक्सेस्ड properties are become private in the derived class. That will be the conclusion of this private access. और जब अब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी तो ऑब्वियसली हम उसको मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड इन अनदर एग्जांपल देयर विल बी द पब्लिक। सो अब आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल। अगर हमने प्राइवेटली एक्सेस किया था तो ये सारी प्रॉपर्टीज ड्राइव्ड क्लास के लिए प्राइवेट बन गई थी। अगर आप पब्लिक कीवर्ड के साथ एक्सेस करोगे देन ऑल दीज प्रॉपर्टीज एक्सेस्ड बाय द ड्राइव्ड क्लास इज ट्रीटेड एज पब्लिक। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास में वो पब्लिक बन जाएगी। चाहे वो बेस क्लास में पब्लिक हो प्राइवेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। बेस क्लास में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्राइवेट यूज करोगे तो ड्राइव्ड क्लास में प्राइवेट बन जाएगी, चाहे वो बेस क्लास में पब्लिक रही हो चाहे प्राइवेट रही हो। और अगर आप पब्लिक एक्सेस कर रहे हो देन वो बेस क्लास ड्राइव्ड क्लास में आके पब्लिक बन जाएगी, चाहे आपने पहले प्राइवेट यूज कर रखा हो चाहे पब्लिक यूज कर रखा हो। दैट विल बी द स्टेटमेंट। So use public, private और protected accordingly. Mainly हम यहाँ पे most of protected यूज करते हैं, है ना। तो वैसे कॉलिंग में तो हम ज्यादा पब्लिक यूज करेंगे बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम रखने वाले हैं वो प्रोटेक्टेड, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों करते हैं हम ऐसा। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी ओनली हम कॉलिंग की बात कर रहे हैं कि कॉलिंग के टाइम आपको यहाँ पे क्या रखना है। तो अगर प्राइवेट रखोगे, अगर आपको जो प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो बेस क्लास की अगर उसको आपको कॉल नहीं करना है मेन फंक्शन में देन यू कैन कॉल प्राइवेटली। और अगर यू वांट टू कॉल देम इन मेन फंक्शन देन यू कांट कॉल विद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, you have to call with public. Okay, that will be the we can say limitation or we can say boundation. Next one is the making private members inheritable. यहां पे हम प्रोटेक्टेड की बात करेंगे। अगर बेस क्लास के मेंबर्स प्राइवेट हैं तो हमने स्टार्टिंग में जब एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे तब हमने ऐसा पढ़ा था कि जब क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट हो तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, बट ये चीज फ्रेंड फंक्शन में हमने देखी
कि फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकता है ना। तो वी कैन से दैट विल बी एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो फ्रेंड एक ऐसा फंक्शन है जिसको परमिशन है प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की, बट वहां भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? फंक्शन को क्लास के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा और वहीं पे उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हो ना। दैट विल बी द लिमिटेशन, बट हम एक्सेस कर पाए। ओके, सो आफ्टर फ्रेंड फंक्शन क्या हम इनहेरिटेंस में भी प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं? तो यहां पे डायरेक्टली अगर आप प्राइवेट को एक्सेस करने जाओगे देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स। एक्सेस डिनाई टाइप ऑफ मैसेजेस यू कैन सीन ऑन योर स्क्रीन। हम लैब में देखेंगे इसको, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हम प्राइवेट पुट करके भी देखेंगे, हम पब्लिक प्रोटेक्टेड, हम तीनों को एक्सेस करके देखेंगे जब भी हम इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल करेंगे। बट हियर वी विल डिस्कस सम specific things about the private member, accessing by using inheritance. तो हमने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग से पढ़ा है वो क्या है कि हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। अभी तक हमने ये पढ़ा है। फ्रेंड फंक्शन को एक बार इसमें इंक्लूड मत करो। फ्रेंड फंक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन, है ना, उसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तो उसको आप एक बार इग्नोर करो, है ना। यहाँ पे उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो यही है कि हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, सो ड्राइव्ड classes are also unable to access private data। किसी भी मोड में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। देयर विल बी इंक्लूडेड एनी मोड ऑफ ड्रिवन। इट मीन्स आप यहां चाहे प्राइवेट लिखो, चाहे पब्लिक लिखो, चाहे प्रोटेक्टेड लिखो, ये वाली प्रॉपर्टी आप एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव्ड क्लास के अंदर। ओके, ये क्लियर है सबको? प्लीज से यस और नो। इज इट क्लियर? देन we will discuss some another important points। यहाँ पे मेनली मैं प्रोटेक्टेड की बात करूंगा, इसीलिए ये सब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड क्यों यूज करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटेक्टेड की। सो वी कांट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी क्लास इन ड्राइव्ड क्लास। हम किसी भी बेस क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। दैट विल बी द कंस्टेंट। देन व्हाट विल बी डू? हम क्या करेंगे? क्या हम सबको पब्लिक कर दें? अगर हम सबको पब्लिक कर देंगे तो फिर ड्राइव्ड क्लास के साथ साथ उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, हम प्राइवेट को एक्सेस कर नहीं सकते, पब्लिक हम रख नहीं सकते, बिकॉज ऑफ अगर हम पब्लिक कर देंगे देन उस प्रॉपर्टी को फिर कोई भी एक्सेस कर लेगा, कोई भी उसको चेंज कर देगा। दैट विल बी सिक्योरिटी वायलेशन, है ना। ईच एंड एवरी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी। अगर हम प्राइवेट पब्लिक कर देते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग ही फिनिश हो जाएगा, है ना। हम डेटा सिक्योरिटी के लिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं, और आप प्राइवेट सबको कर दोगे तो पब्लिक सबको कर दोगे तो एवरीवन कैन एक्सेस देम, then there will be no securities। That's why we need to use the third
access specifier that will be protected. है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्पेशली इनहेरिटेंस के लिए बना हुआ. Okay, we can't use here public, we can't use here private. You can only use here protected access specifier because of it provides access only for derived classes. बाकी किसी को एक्सेस नहीं देता, मतलब ये जस्ट प्राइवेट की तरह ही काम करेगा. इट इज ऑल्सो ए वर्जन ऑफ प्राइवेट, but private with some reliabilities. ओके, तो यहाँ पे प्राइवेट है बट कुछ रिलायबिलिटीज है. दीज आर रिलायबिलिटीज फॉर ड्राइव्ड क्लासेस. दैट्स व्हाई in inheritance we will declare all data members of base class in protected access. Sorry. So you have to care about this कि हमें सब कुछ जो डेटा मेंबर्स बेस क्लास के होंगे वो ऑलवेज प्रोटेक्टेड के अंदर डिक्लेयर करने हैं. ओके, now we will discuss the another example. There will be a class student, सेम वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था. पहले यहाँ पे प्राइवेट था, अभी मैंने क्या डिफाइन किया है, प्रोटेक्टेड. Why we have to define the protected? Because of we want to access these data members in the derived classes. There will be two derived classes, marks 1 and marks 2. And publicly access student, that will be privately access student. There will be no problem. चाहे आप publicly access करो, चाहे आप privately access करो. अगर ये डेटा प्रोटेक्टेड है then you can access it here as well as you can access it here, है ना. और पब्लिक को तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, there will be no problem. Okay, so there will be a table. You can see this base class visibility. Okay, these are visibility modes. Okay, अगर बेस क्लास के डेटा प्राइवेट हो और ये आपके क्या है, ये वाले वर्ड्स हैं, ध्यान रखना. ये आपने पब्लिक और प्राइवेट यहाँ यूज किया ना, दीज आर दीज थिंग्स, है ना. ड्राइव्ड क्लास विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी मोड्स हैं, विजिबिलिटी मोड्स. और ये बेस क्लास के डेटा के लिए हम यूज कर रहे हैं. तो अगर बेस क्लास के डेटा प्राइवेट हो तो ड्राइव्ड क्लास अगर प्राइवेटली एक्सेस करे तब भी आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते डेटा को. वो अगर पब्लिकली करे तब भी नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड करे तब भी नहीं कर सकते. यानी यहाँ पे चाहे पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, चाहे प्राइवेट हो, अगर यहाँ प्राइवेट है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते. दैट विल बी द रेस्ट्रिक्शन. और अगर क्लास के डेटा पब्लिक हो, जैसे मैं इन मेंबर्स की बात करूं, देन यू कैन एक्सेस प्राइवेटली, पब्लिकली एंड प्रोटेक्टेड. तीनों ही कंडीशन में आप एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. यहाँ पब्लिक जो आपने लिख रखा है, यहाँ पे आप चाहे पब्लिक लिखो, प्राइवेट लिखो, चाहे प्रोटेक्टेड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पब्लिक को आप एक्सेस कर सकते हो. अगर बेस क्लास का डेटा प्रोटेक्टेड हो, इट विल बी द इंपॉर्टेंट. हमें यही वाला यूज करना है, क्योंकि पब्लिक का मैंने आपको बताया क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर बेस क्लास के सारे डेटा पब्लिक कर देंगे तो देयर विल बी नो सिक्योरिटी.
प्राइवेट को हम एक्सेस कर नहीं सकते. So these are not useful in reference of inheritance. In protected, whenever we access privately, all data becomes private. ड्राइव क्लास में आके सब क्या बन जाएंगे? प्राइवेट बन जाएंगे. जब हम पब्लिकली एक्सेस करेंगे तब भी वो प्रोटेक्टेड बनेंगे, और जब हम प्रोटेक्टेड एक्सेस करेंगे तब भी वो प्रोटेक्टेड बनेंगे. It means there will be no security issues whenever we use the protected access specifier. So it will be the important for us in reference of inheritance. Okay. Types of inheritance. If we talk about type of inheritance, then there will be single, multi-level, multiple, hybrid, and hierarchical. These are the parts, types of inheritance. We will discuss all these one by one. Okay, first we will discuss about the single inheritance. What is single inheritance? There will be one base class and one derived class. Okay, one base class and one derived class. That will be the single inheritance. We can say scenario like this. Class A accessed by class B. Okay, that will be the scenario of single inheritance. It will be the base class and it will be the derived class. Sorry. So if we talk about some syntax and examples, then we can get one example for single inheritance. There will be animal is derived from living things. लिविंग थिंग्स एक बेस क्लास है. लिविंग थिंग्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो श्वसन क्रिया करती है. वी कैन से दैट परफॉर्म द ब्रीथिंग, है ना. वो सारी की सारे लिविंग थिंग्स हैं. उसमें से एनिमल जो है वो एक कैटेगरी है. दैट विल बी द derived क्लास ऑफ लिविंग थिंग्स. Or we can say another example, car is derived from vehicle. In vehicle there will be two-wheelers, four-wheelers, and the wide category of four-wheelers, wide category of three-wheelers also, है ना. तो ये सभी के सभी क्या है? vehicles हैं. But car is one of them, है ना. इन vehicle में से एक vehicle क्या है? कार भी है. So car is the just the derived class of vehicle. So these are two examples, real world examples. You can understand single inheritance by using these examples. If we talk about syntax of single inheritance, then we write the keyword class and then derived class name, and we have to use the colon, then visibility mode for the base class and the name of the base class. That will be the syntax, and that will be the body of, we can say, derived class. So we will discuss a example for that single inheritance. There will be a base class. Name is base. Okay, there will be a variable value in excess of protected. ये किस टाइप का वेरिएबल है? प्रोटेक्टेड है. प्रोटेक्टेड मीन्स इसको क्लास से बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता. ओनली derived क्लास एक्सेस कर सकती.
Okay. Then there will be two member functions, read and display. In read, uh, input a value in variable value, and in display there will be output displayed of the variable value. Okay, these are simple functions. You can all understand them easily. Then now we will come on the derived class. What is the name of class? Derived. What is the access of base class? Publicly. We will access publicly the base class. It means all these things accessed by the derived class are become in derived class public, है ना? तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हमने क्या यूज किया एक्चुअली, हमने इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया. We want to calculate the square of value and we don't want to input again in the derived class. So we can access already inputted value from the base class, है ना? यहाँ पे एक्चुअली ये मान सकते हो कि एक सेप क्लास है, उसके अंदर आपने एक साइड दे रखी है और आप स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हो, देन you can calculate by this. You can access this protected data member in derived class easily. So आपने यहाँ पे क्या लिखा? Value into value. So the whenever the output of we can say the value of value variable will be 5. मान लो यहाँ जब आपने input किया तो that will be 5 for value. Then what is result by this show function? By the this show function, that will be 25. Okay. In main function there will be object always created for the derived class, है ना? बेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना. क्यों नहीं है? क्योंकि derived क्लास सब कुछ एक्सेस कर सकता है. तो वाई यू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स? हम यहाँ पे बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें और ड्राइव क्लास का भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें, ऐसा जरूरी नहीं है. यू हैव टू डिक्लेयर ओनली ऑब्जेक्ट फॉर द ड्राइव क्लास. बेस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है यहाँ पे. ओके, तो आप इसमें देख सकते हो ओनली हमने ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का ओबी, और ओबी सबसे पहले किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है. फर्स्ट कॉल द रीड वैल्यू, है ना? ये कॉल कर सकता है क्योंकि इसने इनहेरिट किया है, इसने इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है. सो इट विल बी कॉल, है ना? आगे देखो कमेंट लिखा हुआ भी है कि ऐसा क्यों करता है. ओ बी कॉल्ड द रीड वैल्यू मेथड ऑफ द बेस क्लास टू रीड ए वैल्यू, है ना? वैल्यू नाम के वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है. So secondly, we have to call the second function that will be display. अब यहाँ पे डिस्प्ले का रिजल्ट क्या आएगा? That gives us result. अगर हमने वैल्यू 5 दी है then the output will be 5 by this display function. And फिर हमने show function को कॉल किया, that will be function of derived class, or it will be give us the result 25. So it will be the demonstration of single inheritance. Okay, there will be same example, class A and class B. Class B access all properties of class A.
ओके, सो हियर ए क्लास ए, और क्लास ए के अंदर फंक्शन क्या है, डिस्प्ले। दिस इज बेस क्लास, ओनली एक मैसेज प्रिंट करवाया, दिस इज बेस क्लास। There another class defined with name B and inherit A। अब देखो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट क्या होगी, प्राइवेट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या मैसेज दिया है, शो फंक्शन के अंदर, दिस इज ड्राइव्ड क्लास। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे ओनली बेस क्लास का, सो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बी क्लास का obj1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और हमने दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया, डिस्प्ले को और शो को। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर स्पेस लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल हो रहा है बेस क्लास का, ओके, बेस क्लास का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, और एरर आ रही है, देखो A is not an accessible of B, है ना। यहाँ पे एरर आ रही है कि A को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो B के अंदर। रीजन क्या है, देखो obj1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास B, B क्लास का ऑब्जेक्ट है। The obj1 can access the public member functions डिस्प्ले ऑफ क्लास बी। ये पब्लिक है तो हम एक्सेस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपने इसको प्राइवेटली एक्सेस किया है। प्राइवेटली एक्सेस किया है तो ये इस क्लास के अंदर आकर क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा, और अगर ये प्राइवेट है तो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको मेन फंक्शन में, सो दैट विल बी द प्रॉब्लम, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट गिव्स एन एरर मैसेज, वाई, बिकॉज क्लास ए इज प्राइवेटली इनहेरिटेड। यहाँ पे हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेटली एक्सेस हो रही, सो इट विल बी द रीजन। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज के सेशन में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या रख दिया, पब्लिक रख दिया, ओके। नाउ वी विल ट्राई again, okay, we will call the display function, display function will be called, okay, and message will be displayed on the console screen, this is base class A, है ना। जैसे आपने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डाला, ये एक्सेस हो गया, एंड सेकेंड फंक्शन दैट विल बी ऑफ ड्राइव्ड क्लास, और ये मैसेज आपका आ गया, दिस इज ड्राइव्ड क्लास, okay, so that will be the representation, or we can say calling scenario of the single inheritance. So you have to use here public, public आप यूज नहीं करोगे तो ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल नहीं कर पाओगे, ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू कॉल पब्लिकली। Okay, so today's topics I think हम इतने ही कवर कर पाएंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर पाएंगे।